My lovely students, welcome to Mathological. This is the third session on probability, and I believe that you've already watched the first and second session, and then you are continuing with this session. Start करते हैं session को, and if you've not already subscribed to the YouTube channel and you're liking the content, then make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. You should also share with other aspirants who are preparing for these examinations, and you can also join the Telegram channel Mathological and message me on Telegram at ADITYAKT. So first question of this session: the probability of solving a problem by three students A, B, and C are 3 by 7, 4 by 9, and 1 by 5 respectively. So we have to find the probability that problem will get solved. So what would be probability if these are the given conditions कि three students can solve, A, B, and C can solve a problem with probabilities 3 by 7, 4 by 9, and 1 by 5. तो कंडीशन हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, दैट प्रॉब्लम शुड गेट सॉल्व. ठीक है, कितने सिनारियोज बन सकते हैं इन टोटल? देखो, ए कैन सॉल्व द प्रॉब्लम with a probability 3 by 7. That implies कि A can solve the problem 3 out of 7 times, isn't it so? And will fail to solve the problem 4 out of 7 times. मतलब तो यही हुआ ना. So either A will be able to solve the problem or A will not be able to solve the problem. So the two scenarios for A. Either he will be able to solve the problem or he will not be able to solve the problem, isn't it so? Same for B. Either he will be able to solve the problem or he will fail to solve the problem. ठीक है, बट हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, दैट प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व्ड. दिस इंप्लाइज कि कम से कम एक बंदा तो हो जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले. एटलीस्ट वन स्टूडेंट मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम. दिस स्टेटमेंट हियर इंप्लाइज दैट एटलीस्ट वन शुड बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. शुड बी एबल टू सॉल्व. टोटल सिनारियोज क्या बन सकते हैं? ए के लिए दो चॉइसेस हैं, इधर ही विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम और ही विल फेल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. सिमिलरली टू चॉइसेस फॉर बी एंड सिमिलरली टू चॉइसेस फॉर सी. टोटल ऑप्शंस हो जाएंगे, टोटल केसेस हो जाएंगे 8 केसेस. अब उनको एक बार इन्यूमरेट कर लेते हैं सारे के सारे केसेस को, ए, बी एंड सी. ठीक है, तो पहले केसेस बनाते हैं कि वन स्टूडेंट ओनली इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम. लेट अस से ए सॉल्व्स द प्रॉब्लम एंड बी एंड सी फेल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, or maybe B is solving the problem and A and C fail to solve the problem, or maybe C is the solving the problem and rest two A and B are not able to solve the problem. तो ये हमारे 3 cases बन गए when the problem gets solved by exactly one student. अब similarly 2 students can solve the problem, so maybe A and B are able to solve the problem but C fails, or A and C solve the problem and B fails, or B and C solve the problem and A fails, or maybe all 3 are able to solve the problem. In last case, when all 3 failed to solve the problem. How many cases are favorable? Out of these 8, कितने cases favorable हैं? अब देखो, नंबर ऑफ वेज हर एक में प्रोबेबिलिटी हर एक में अलग अलग होगा, ठीक है, बट टोटल केसेस कितने काम किए हमारे? 7 cases are favorable. 7 cases out of these 8 are favorable because in those 7 cases our problem gets solved. There is only one case when the problem is not getting solved. So again we have two approaches. One way is to find out all these probabilities and add up these 7 probabilities, या फिर डायरेक्टली हम लास्ट वाली probability फाइंड आउट कर ले when the problem does not get solved, और टोटल probability यानी कि 1 में से उस लास्ट वाले केस को सब्ट्रैक्ट कर दें. ठीक है, सो आवर probability of solving the problem, this will be equal to 1 minus probability that problem is not getting solved, not solved by any. And since इस वाले केस में we have to calculate exactly one probability, so this one is much easier instead of calculating 7 different cases, isn't it so? क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? तो स्टेट पे हम बस उसी एक केस को कैलकुलेट करेंगे एंड वील बी सब्ट्रैक्टिंग दैट बाय 1 फ्रॉम 1. ठीक है, 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो 1 माइनस probability that no one is able to solve the problem. Now A can solve the problem in 3 by 7 with the probability 3 by 7. 3 by 7 is the probability when A is solving the problem. 4 by 9 is the probability when B is solving the problem, and 1 by 5 is the probability when C is solving the problem. और हमें तीनों से सॉल्व नहीं करवानी है, तो बेसिकली, और तीनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ए कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बी पे डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ए बार. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम. So this will be 1 minus A not solving will be 1 minus 3 by 7, that will be 4 by 7. B not solving will be 1 minus 4 by 9, that will be 5 by 9. And C not solving will be 1 minus 1 by 5, which is equal to 4 by 5. 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो this will be 1 minus 16 by 63, that will be 47 upon 63. So the answer
दैट द प्रॉब्लम विल बी गेटिंग सॉल्व, दैट विल बी इक्वल टू 47/60। अब तुम चाहो तो सारे के सारे केसेस को आइडेंटिफाई करो, 7 केसेस में हर एक में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो और उन सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट एक आने वाला है। स्ट्रेट अवे एक बार में एक स्टेप में आंसर आएगा, वो बेस्ट है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बातें समझ पा रहे हो? ठीक है, अब एक और केस निकाल लेते हैं, व्हेन एग्जैक्टली वन स्टूडेंट इज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने से तुम्हारे लिए और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगा। व्हेन एग्जैक्टली वन स्टूडेंट इज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इसको भी कैलकुलेट कर लेता हूं। सो इफ एग्जैक्टली वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो हमारे 3 केसेस बनने वाले हैं। इधर ए विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बी एंड सी विल बी फेलिंग, और बी विल बी सॉल्विंग प्रॉब्लम, ए एंड सी विल बी फेलिंग, और थर्ड सिनेरियो सी विल बी सॉल्विंग प्रॉब्लम, रेस्ट 2 विल बी फेलिंग। अब तीनों की सेपरेटली प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सो प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन सॉल्व्स द प्रॉब्लम, दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट केस का प्रोबेबिलिटी प्लस सेकंड केस का प्रोबेबिलिटी प्लस थर्ड केस का प्रोबेबिलिटी। सो फर्स्ट केस का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ए इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तो प्रोबेबिलिटी of A solving the problem and B and C are not able to and all are independent, so probability of B not solving multiplied by probability of C not solving. Similarly, second case में this will be probability of A not solving multiplied by probability of B multiplied by probability of C not solving, plus last case probability of A not solving multiplied by probability of B not solving multiplied by probability of C. So this will be equal to, अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें समझाने के लिए मैंने ये पहला लाइन लिखा है। अदरवाइज तुम डायरेक्टली क्या लिखोगे? पहले वाले केस में क्या है? ए इज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी फॉर दैट विल बी 3/7 एज गिवन मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट सॉल्विंग, दैट विल बी 1 - 4/9 विच इज 5/9 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 फॉर सी, प्लस नाउ ए इज नॉट सॉल्विंग तो 4/7 मल्टीप्लाइड बाई बी इज एबल टू सॉल्व, दैट इज 4/9 itself मल्टीप्लाइड बाई 4/5, एंड लास्ट सिनेरियो that is C is able to solve, A and B are not able to solve, so 4/7 into 5/9 and lastly into 1/5. So denominator becomes 9 into 7 into 5, that is 315. Numerator आ जाता है हमारा 20 into 360 plus 64, that is 120 plus 64 124 plus 20, that is 144. 144 divided by 315 and both are divisible by 9, so this becomes 16 upon 35. The probability that exactly one is able to solve the problem, that is equal to 16/35. अब इसी तरह से तुम अपने एंड पे चाहो तो exactly 2 able to solve the problem को अपने एंड पे सॉल्व करना, अपने एंड पे सॉल्यूशन निकालना और कमेंट में मेंशन करना कि क्या आंसर आएगा फॉर exactly 2 या एटलीस्ट 2, और बेटर कर देते हैं एटलीस्ट 2। एटलीस्ट 2 तो खैर आसान है, ऑलरेडी जो वैल्यू ने निकाला उसी से निकल जाएगा, तो exactly 2, so that exactly 2 are able to solve the problem. What would be that probability? Okay, next question पे चलते हैं। Next question is the probability of selecting a green marble at random from a jar that contains only green, white and yellow marbles is 1/4. We are selecting a green marble at random from a jar और जार में हमारे पास green marbles are there, white marbles are there, yellow marbles are there और probability क्या है हमारी 1/4 है, 25% है, 1/4 है। इस बात का मतलब क्या हुआ? This implies that अगर जार में 4 total marbles होते, अगर 4 total marbles होते तो out of 4 marbles 1 marble is a green marble, क्योंकि एक ही मार्बल तो निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर 2 मार्बल्स निकाल रहे होते, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 मार्बल्स वाला केस होता तो फिर वहां पे हमें फॉर्मूला प्रॉपर्ली लिखना होता। बट इन दिस सिनेरियो वी नो फॉर श्योर इफ टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू 4 देन नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इज इक्वल टू 1। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? फर्स्ट लाइन से हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली सेकंड लाइन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ व्हाइट मार्बल एट रैंडम फ्रॉम द सेम जार इज 1/3। ओके, सो इफ टोटल मार्बल्स आर 3 देन वन ऑफ देम इज अ व्हाइट मार्बल, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हमारे 4 का मल्टीपल भी होंगे और 3 का मल्टीपल भी होंगे। If this jar contains 10 yellow marbles, so what is the total number of marbles in the jar? Simple questions बन गए, क्वेश्चन बन गया हमारे। 3 केसेस थे, ग्रीन मार्बल, व्हाइट मार्बल, येलो मार्बल एंड ऑब्वियसली टोटल मार्बल्स। Now if total marbles is a multiple of 4 as well as 3, तो we can assume that total is equal to 12. So if total marbles are equal to 12, तो green marbles कितने होंगे? 1/4 होंगे, यानी कि that will be equal to 3. व्हाइट मार्बल्स कितने होंगे? 1/3 होंगे, so that will be equal to 4. टोटल 12 है, 12 minus 3 plus 4 that is 7, so यानी कि 5 होंगे हमारे पास येलो मार्बल्स। और क्वेश्चन इज सेइंग टोटल येलो मार्बल्स आर 10 which is 5 multiplied by 2, तो यहाँ से टोटल मार्बल्स भी इजीली निकल आएगा, that will be 12 into 2 यानी कि 24 मार्बल्स इन टोटल। सिंपल क्वेश्चन था, क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, इजी क्वेश्चन। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, इफ ए नंबर m is to be chosen from set A, और सेट A में नंबर्स क्या है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
एंड अनदर नंबर n इज टू बी चोजन फ्रॉम द सेट बी. सेट बी में नंबर्स है हमारे 10, 15, 20, 25, 30, 5 नंबर्स, ऑल मल्टीपल ऑफ 5. देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n इज एन इवन नंबर. हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ m एंड n इज एन इवन नंबर. तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगा हमारा? अब अगर हमें इवन नंबर एज अ प्रोडक्ट चाहिए, सो यहाँ पे केसेस क्या क्या बन सकते हैं? बिकॉज बोथ सेट्स कंटेन इवन नंबर्स एज वेल एज ऑड नंबर्स, तो दोनों सिनारियोस पॉसिबल है. ठीक है, सो इफ m इज ऑड, n इज ऑड, बोथ आर ऑड, तो रिजल्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट करना है हमें, तो m इंटू एन इन दैट केस विल ऑल्सो बी ऑड. बट अगर दोनों में से एक भी इवन हो जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट इवन आ जाने वाला है. ठीक है, सो इफ m इज इवन, n इज ऑड, तब भी हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा? इवन आएगा. इफ n इज इवन, m इज ऑड, तब भी प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा? इवन आएगा. एंड इफ बोथ आर इवन, तब भी प्रोडक्ट क्या आएगा? इवन ही आएगा. तो बेसिकली हमारे पास 3 केसेस बन रहे हैं फॉर इवन प्रोडक्ट. तो बेटर हमारे लिए क्या होगा? इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग फॉर 3 केसेस, हम सिर्फ और सिर्फ एक केस के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें और उसको टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n इज अ इवन नंबर. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्रोडक्ट बीइंग इवन दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ऑड. और सिर्फ एक ही सिनारियो में ऑड होगा. अच्छा, m हमें नंबर लेना है सेट ए से, तो सेट ए से ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इन सेट ए वी हैव टोटल 1, 3, 5, 7, 9, 5 ऑड नंबर्स आउट ऑफ टोटल 9. तो ऑड की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम सेट ए विल बी 5/9. सिमिलरली सेट बी से वी आर चूजिंग n, तो n के ऑड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? आउट ऑफ टोटल 5 ऑड नंबर्स कितने हैं हमारे पास? टोटल 2 ऑड नंबर्स आर देयर, 15 एंड 25, तो 2/5 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड. ओके, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बीइंग ऑड हम निकाल रहे हैं. ठीक है, प्रोडक्ट ऑड कब होगा? व्हेन बोथ आर ऑड. एंड और दोनों का ऑड होना एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो सीधे सीधे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ m बीइंग ऑड मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ n बीइंग ऑड. दिस विल बी 1 माइनस m ऑड का प्रोबेबिलिटी है 5/9 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 विच विल बी 2/9 itself. तो 1 माइनस 2/9 यानी कि आंसर आ जाएगा 7/9. तो 7/9 is the answer that m into n will be a even number. Is that part clear? बाकी अपने एंड पे तुम चाहो तो एक बार सारे तीनों केसेस को लेके अपने एंड पे सॉल्व करके देख लो, बात एक ही है. ठीक है, जरूरत नहीं है उसकी. स्ट्रेट अवे सीधे सीधे आंसर निकालेंगे अपना, जिससे शॉर्ट तरीके से निकलेगा. क्या ही क्लियर है? ठीक है, ओके, बढ़िया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अ पेयर ऑफ पेयर्ड डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन बोथ डाइसेस इज अ मल्टीपल ऑफ 5. दो डाइसेस को हमने थ्रो किया, हर एक डाइस में आउटकम हमारा 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है. ठीक है, तो डाइस 1 में भी आउटकम हमारा 1 से लेकर 6 के बीच में कुछ भी होगा. इन डाइस 2 एज वेल, एनी नंबर बिटवीन 1 एंड 6. तो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द सम ऑफ द नंबर्स, तो सम हमारा मिनिमम कितना आ सकता है? मिनिमम विल बी 1 + 1, यानी 2 इज द मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम विल बी 6 + 6, so 12 विल बी मैक्सिमम वैल्यू. क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि नंबर्स ऑन बोथ द डाइसेस, सम ऑफ द नंबर्स ऑन द बोथ डाइसेस दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 5. सम शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि केसेस क्या क्या बन सकते हैं? सम कैन बी ईदर 5 और 10. यही दो केसेस तो बनेंगे, या तो सम हमारा इक्वल टू 5 होगा या फिर इक्वल टू 10 होगा. अब अगर फर्स्ट डाइस में लेटेस्ट अज्यूम कि फर्स्ट डाइस में हमारा वैल्यू आ रहा है ए, सेकंड डाइस में वैल्यू आ रहा है बी, तो देयर आर 2 केसेस. फर्स्ट केस विल बी दैट a + b इज इक्वल टू 5, एंड सेकंड केस विल बी व्हेन a + b इज इक्वल टू 10. ओके, सो a + b इक्वल टू 5 में कितने सिनेरियोस बनने वाले हैं हमारे? सो ए कैन बी, मिनिमम से स्टार्ट करो या मैक्सिमम से स्टार्ट करो, किसी एक मतलब ऑर्डर में ही रखना है हमेशा. ठीक है, सो लेट अस से ए इज इक्वल टू 1, तो बी विल बी मैक्सिमम. ए मिनिमम होगा, बी मैक्सिमम होगा, तो 1 + 4. ठीक है, सेकंड सिनेरियो कुड बी 2 + 3, देन 3 + 2, एंड देन 4 + 1. या ऐसे समझ लो कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा? ए का 1 होगा मिनिमम, मैक्सिमम 4 जा सकता है, बिकॉज जब हमें सम 5 चाहिए, तो क्योंकि 5 ले लोगे तो फिर 0 हो जाएगा. 5-0 वाला तो केस पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि 1 पे 0 थोड़ी आउटकम आएगा. तो ओनली 4 केसेस आर पॉसिबल. सेकंड सिनेरियो फॉर a + b इक्वल टू 10. अब a हमारा मिनिमम कितना हो सकता है? 1 लोगे तो फिर b को 9 होना पड़ेगा, नॉट पॉसिबल, बिकॉज मैक्सिमम डाइस में 6 आ सकता है. सो मिनिमम कैन बी 4, 4 + 6, नेक्स्ट विल बी 5 + 5, एंड देन 6 + 4, यानी कि 3 केसेस काम के होंगे. टोटल 7 cases are favorable cases. 4 when sum is equal to 5 and 3 when sum is equal to 10. टोटल केसेस कितने बनेंगे? टोटल केसेस 6 पॉसिबिलिटीज ऑन डाइस 1, 6 पॉसिबिलिटीज ऑन डाइस 2. टोटल केसेस विल बी 36. टोटल केसेस विल बी 36. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ sum being a multiple of 5, that will be equal to favorable cases which are equal to 7, 4 + 3 7,
divide by total cases, that is equal to 36. So 7 by 36 will be our answer. Okay, is that part clear? So in case of a dice, there is a clear pattern, ठीक है, कि हमें जब sum find out करना है in case of two dices, sum can be either 2 or 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 or 12. sum 2 आने का there is exactly one case, 1 plus 1, ठीक है, एक ही केस पॉसिबल है. सिमिलरली सम 12 के लिए भी एक्जैक्टली वन केस, 6 plus 6. सम 3 के लिए 1 plus 2 और 2 plus 1, 2 केसेस आर देयर. सिमिलरली फॉर 11, 2 केसेस. एंड देन 4 के लिए 1 plus 3, 2 plus 2 और 3 plus 1, यानी कि हमारे नंबर ऑफ केसेस एक्जैक्टली 1 से इंक्रीज कर रहा है. सिमिलरली 10 के लिए भी 3 हो जाएगा. देन फॉर 5, 4 केसेस. 9 के लिए भी 4 केसेस. 6 के लिए 5 केसेस. 8 के लिए 5 केसेस. और मैक्सिमम केसेस आर फॉर सम इक्वल टू 7, दैट इज इक्वल टू 6. सो दिस इज क्लियरली पैटर्न, सिमेट्रिकल पैटर्न. 1 2 3 4 5 6. मैक्सिमम कब आ रहा है? मैक्सिमम possibilities are when sum is equal to 7, because sum is equal to 7 में क्या हो रहा है कि एक वैल्यू हमारा मैक्सिमम हो जाता है 6 plus 1. ठीक, सम आ रहा है 6 plus 1 बिकॉज एक वैल्यू हमारा मैक्सिमम पे पहुंच गया. अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा 5 plus 2, 4 plus 3, 3 plus 4, 2 plus 5 एंड 1 plus 6, यानी कि 1 से लेकर 6 तक की सारी पॉसिबिलिटीज कवर कर रहा है. दैट इज वाई हमें मैक्सिमम वैल्यूज मिल रही है. मैक्सिमम वैल्यू दैट इज इक्वल टू 6, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक की सारी पॉसिबिलिटीज पे हमें सम दे रहा है इक्वल टू 7. क्या ये बात समझ पा रहे हो? दैट इज वाई जो हमारा मैक्सिमम केसेस बन रहे हैं वो 7 के केस में बन रहे हैं. जबकि किसी भी और केस में 7 से छोटा वैल्यू लोगे, 6 लिया सम, तो किसी एक डाइस पे सम वैल्यू, सम तो नहीं, सम तो हमारा 6 आ रहा है, बट किसी एक डाइस पे वैल्यू हमारा 6 आना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर एक डाइस पे 6 आ गया दूसरे पे 0 आना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. सिमिलरली जब तुम 8 ले लोगे तो दूसरे डाइस पे मिनिमम वैल्यू 1 नहीं आ सकता. ठीक है, तो 1 से लेकर 6 तक के सारे केसेस हमारे सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में बनेंगे, विच इज इक्वल टू 7. दैट इज वाई हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है वो 7 पे आ रहा है, सम इक्वल टू 7 में. क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? क्योंकि इससे बेस्ड एक दो क्वेश्चन और नेक्स्ट सेशन में देखेंगे तो तुम्हें और क्लियर होगा कि सम वाले जब कभी ऐसे केसेस आएंगे तो उनको कैसे हमें हैंडल करना है, कि क्यों हमें वैल्यू 7 पे मैक्सिमम मिल रहा है. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, क्योंकि ऐसे ही अगर समझें, लेट अस से अगर हम 2 डिजिट्स ले रहे हैं, ठीक है, डिजिट से हमारा नंबर बन रहा है ए बी एंड सम हमारा हो ए प्लस बी. नाउ सिंस दीज आर डिजिट्स, ए एंड बी आर डिजिट्स, तो डिजिट्स कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 9. मिनिमम वैल्यू कैन बी 0, मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 9. तो सम हमारा जो होगा ए प्लस बी, मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? मिनिमम विल बी इक्वल टू 0 एंड मैक्सिमम विल बी इक्वल टू 9 plus 9, दैट इज इक्वल टू 18. मिनिमम 0 plus 0. अब यहाँ पे मैक्सिमम केसेस हमें कब मिलने वाले हैं? 0 सम के लिए देयर विल बी एग्जैक्टली वन केस. 18 सम के लिए ऑल्सो देयर विल बी एग्जैक्टली वन केस. मैक्सिमम सम कब मिलेगा? जहाँ पे कि हम 0 से लेकर 9 तक की सारी पॉसिबिलिटीज को कवर अप कर लें. यानी कि एक केस कुड बी 0 plus 9, 1 plus 8, 2 plus 7, 3 plus 6 एंड सो ऑन टिल 9 plus 0. टोटल 10 केसेस मिल रहे हैं. और कब मिलेंगे? व्हेन सम का वैल्यू इज इक्वल टू 9, एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ 0 and 18. तो सम इक्वल टू 9 विल बी गिविंग अस 10 केसेस विच इज द मैक्सिमम वैल्यू. और पैटर्न भी देख पाओगे, 0 पे 1 केस, देन 2, 3, 4, 5, 6 टिल 10, और फिर 10 से रिड्यूस होना स्टार्ट होगा, सेम एज ईयर. ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कब मिल रहा है हमें? मिनिमम सम वॉज 2, मैक्सिमम वॉज 12, तो 2 plus 12 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 7, एग्जैक्टली इन द मिडिल. क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 3 डाइसेस आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेम नंबर अपीयर्स ऑन ऑल द डाइसेस. 3 डाइसेस को हमने रोल किया है, सो टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेम नंबर अपीयर्स ऑन ऑल द डाइसेस. अब तीनों डाइसेस पे या तो 1 1 1 आएगा, 2 2 2 आ सकता है, 3 3 3 आ सकता है, 4 4 4, 5 5 5 और 6 6 6. सो दीज 6 आर आवर फेवरेबल केसेस. टोटल केसेस क्या होंगे? सिंस 3 डाइसेस आर बीइंग रोल्ड, तो हर एक डाइस पे वी हैव 6 पॉसिबिलिटीज. टोटल केसेस विल बी 6 into 6 into 6, 216 केसेस. एंड काम के केसेस हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 216, यानी कि 1/36. प्रोबेबिलिटी विल बी 1/36. इजंट दैट वेरी इजी? 1/36 शुड बी द आंसर. ठीक है, सेकंड में क्या हो सकता था कि पहले हम डिसाइड करते कि क्या आउटकम हमें चाहिए तीनों डाइसेस पे, और उसके बाद में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर देते. ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर आउटकम के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा? टोटल केसेस बनना है 216. सो फॉर एग्जैक्टली वन आउटकम, यानी कि तीनों पे कुछ भी आउटकम आए मे बी, ठीक है, तो उसके लिए पॉसिबिलिटी क्या होगा हमारा? तो पहले हम डिसाइड करते हैं, लेट अस से हम कहते हैं कि 6 केसेस आर पॉसिबल इन टोटल. दीज आर द 6 केसेस.
एंड लेट अस से हमने क्या कि 6 में से किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो 1 और 1 का केस क्या बनेगा, क्योंकि हमें तीनों पे सेम ही आउटकम चाहिए, तो 1/6 फॉर फर्स्ट डाइस, 1/6 फॉर सेकंड डाइस, 1/6 फॉर थर्ड डाइस, 6 इंटू 1/2016 दैट इज ऑब्वियसली इक्वल टू 1/36। ओके, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A pair of fair dice is thrown. What is the probability that number appearing on at least one of the dices is less than 5? Number appearing on at least one of the dices is less than 5. कम से कम एक डाइस में नंबर अपेयरिंग शुड बी लेस देन 5। तो या तो दोनों में लेस देन 5 हो तो भी चलेगा, ठीक है, किसी एक में लेस देन 5 हो, एक में ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो वो भी चलेगा, ठीक है। तो हमें एटलीस्ट वन डाइस में नंबर शुड बी लेस देन 5। टोटल केसेस क्या बनेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल केसेस 6 into 6 36 are total cases. Now what is allowed? Allowed है कि let us say dice 1 and dice 2, if in dice 1 number is less than 5 and in dice 2 as well, तो ये केस तो allowed है, this is first favorable case. Second case could be कि dice 1 में नंबर है less than 5, और ध्यान ही रखना कि लेस देन 5 के अपोजिट केस क्या होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, नॉट ओनली ग्रेटर देन 5, इक्वल टू 5 ऑल्सो, ठीक है। तो अपोजिट वाला केस होगा ग्रेटर इक्वल टू 5। नाउ दिस इज ऑल्सो अलाउड क्योंकि एक डाइस पे लेस देन 5 है। नाउ थर्ड केस विच इज अलाउड इज व्हेन ग्रेटर इक्वल टू 5 हमारा डाइस 1 पे आए और लेस देन 5 ऑन डाइस 2, एंड टोटल 4 केसेस ही बनने वाले थे। फोर्थ केस क्या होगा यहाँ पे, व्हेन बोथ आर ग्रेटर इक्वल टू 5। अब ये वाला केस अलाउड नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दीज 3 केसेस हम स्ट्रेट अवे क्या करेंगे, फोर्थ वाले केस को कैलकुलेट करके 1 में से प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो आवर फेवरेबल केसेस इन दिस केस विल बी 1 minus probability when both outcomes, probability of dice 1 outcome being greater than equal to 5 multiplied by probability of dice 2 outcome being greater than equal to 5, because both are independent वाला scenarios, ठीक है। so the answer will be 1 minus, अब dice 1 में greater than equal to 5 कब आएगा, 5 आए या 6 आए, तो 2/6 multiplied by 2/6 और dice 2, तो 1 minus 1/9 that is equal to 8/9. our answer in this case will be 8/9. is that clear? ठीक है, क्या ये क्लियर है? Our answer will be 8/9 itself. Okay, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next is when two fair dices are rolled, what is the probability that the number showing on the first die is less than the number showing on the second die? So number showing on the first die should be less than number showing on the second dice. तो क्या probability आएगा for this case? What should be the probability that number showing on the first die is less than number showing on the second dice? अब केसेस बनाते हैं, ठीक है। लेट अस से कि नंबर शोइंग ऑन द सेकंड डाइस दैट इज इक्वल टू 1, या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3, 4, 5 एंड 6। अब अगर सेकंड डाइस पे नंबर हमारा आ रहा है इक्वल टू 1, सो फर्स्ट डाइस पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि नंबर हमें चाहिए लेस देन 1। क्या कोई केस बनेगा? कोई भी केस नहीं बनेगा, नो केसेस, नील बटे सन्नाटा, तो जीरो फेवरेबल केसेस। अब नंबर ऑन द सेकंड डाइस इज 2, तो फर्स्ट डाइस पे वी कैन ओनली हैव 1 केस, भाई 1 आ सकता है सर, लेस देन 2 चाहिए, एग्जैक्टली 1 केस, लेस देन 3 चाहिए तो 1 और 2, 2 केसेस, लेस देन 4 चाहिए तो 1, 2 और 3, 3 केसेस, लेस देन 5 चाहिए तो 1, 2, 3, 4, 4 केसेस, और लेस देन 6 चाहिए तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, टोटल केसेस आर 5। तो हमारे टोटल केस क्या बने, टोटल काम के केसेस 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी कि 15 केसेस आर फेवरेबल व्हेन outcome on the first dice is less than outcome on the second dice. Total cases will be 36 only. So probability will be 15/36. The number showing on the first dice is less than that on the second dice, यानी कि 5/12. Our answer will be 5/12. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को सोचने का एक और मेथड हो सकता था, वो ये हो सकता था कि एज सच क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। इधर डाइस 1 का नंबर आउटकम विल बी लेस देन डाइस 2 का आउटकम, और डाइस 1 का आउटकम विल बी इक्वल टू डाइस 2 का आउटकम, और डाइस 1 का आउटकम विल बी ग्रेटर देन डाइस 2 का आउटकम। यही तो 3 सिनेरियोज बनेंगे, और सिंस बोथ डाइसेस आर शोइंग बिटवीन 1 एंड 6, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक सेम ही पॉसिबिलिटीज है दोनों डाइसेस में, तो फर्स्ट केस एंड थर्ड केस विल हैव सेम नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या ये बात कह रहे हैं? फर्स्ट केस विल हैव सेम नंबर ऑफ आउटकम्स एज द थर्ड नंबर केस, इजंट इट सो? भाई या तो डाइस 1 में डाइस 2 से छोटा होगा, या डाइस 2 में डाइस 1 में डाइस 2 से बड़ा होगा, दोनों के लिए नंबर ऑफ आउटकम सेम होंगे हमारे।
सो सिर्फ और सिर्फ अगर हम डाइस 1 इक्वल टू डाइस 2 वाले केसेस को फाइंड आउट कर लें और उनको 36 टोटल केसेस में से सब्ट्रैक्ट कर दें और फिर डिवाइड बाई 2 कर दें, तो क्या हमें किसी एक केस के काम के सिनारियोज नहीं मिल पाएंगे? ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड आर इक्वल. ठीक है, डाइस 1 इक्वल टू डाइस 2, सिंस बोथ डाइसेस आर शोइंग नंबर्स बिटवीन 1 एंड 6, तो डाइस 1 और डाइस 2 का आउटकम इक्वल होगा, यानी कि या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा. तो एनी नंबर बिटवीन 1 एंड 6, यानी कि 6 पॉसिबल केसेस शुड बी देयर फॉर दिस. ठीक है, सो द केसेस इन द फर्स्ट सिनारियो, दिस विल बी इक्वल टू 36 टोटल केसेस माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2. डिवाइड बाई 2 इसलिए कर रहे हैं बिकॉज फर्स्ट टू थर्ड में इक्वल नंबर ऑफ केसेस बनेंगे हमारे. तो यानी कि 30/2 विच इज इक्वल टू 15 केसेस आर फेवरेबल केसेस एज सच. क्या ये क्लियर है? 15 cases will be favorable and hence answer will be 15/36 as such. Isn't it so? Is that part clear? So our answer in this case will be 5/12. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पाए, समझ पा रहे? ठीक है, सो इतना ही रखते हैं सेशन में. एंड आई बिलीव जो भी हमने डिस्कस किया वो समझ में होगा एंड यू वर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट जो भी हमने डिस्कस किया. फिर भी अगर कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एज वेल. एंड इफ यू लाइक दिस सेशन then make sure to hit the like button and also subscribe to the channel and share about the channel with others who are preparing for this examination. That's all, and bye bye. Take care. Keep learning.